मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ادھر ہو جاؤ بھائی، ادھر ہو جاؤ، سامنے ہو جاؤ، آ جاؤ ادھر ہو جاؤ، کلام پاک کے سامنے بیٹھے ہیں، اچھا رہے گا، آ جاؤ ادھر ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ کہ تم عورتوں کے مالک بن جاؤ زبردستی، اور نہیں حلال ہے تمہارے لیے کہ ان کو تم روک کر رکھو، مقید کرو، ان کو مقید مت کرو، ان کو روک کر مت رکھو، اس غرض سے تاکہ تم ان سے وہ لے لو جو تم نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے، مگر یہ کہ وہ کوئی ناشائستہ سری غلطی کر دے، لے آئے کوئی ناشائستہ بات، سری گناہ، اور ان کے ساتھ گزر کرو اچھے طریقے سے۔ پس اگر تمہیں وہ ناپسند ہو، ممکن ہے یہ کہ تم ناپسند کرتے ہو کسی ایک چیز کو اور اللہ نے اس میں رکھ رکھی ہو بہت ساری خیر، اور اگر تم بدلنا چاہو، اگر تم چاہو یہ کہ ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو بدلے، یعنی دوسرا نکاح کرے، اور تم نے دے رکھا ہے ان میں سے کسی کو بہت سارا مال، تو نہ لے، اس کو جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ کچھ اس میں سے لے۔ کیا تم لینا چاہتے ہو اس کو بہتان کے ذریعے یا سری گناہ کے ذریعے، ظلم کے ذریعے؟ اور کیسے تم اسے لے سکتے ہو درا حالہ کہ تم پہنچ چکے ہو، بعض ایک دوسرے سے تم مل چکے ہو، اور تم میں سے نہ اور تم میں سے لے اور تم سے وہ لے چکی ہے پکا عہد۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ نساء سن رہے ہیں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 19 سے لے کر کے آیت نمبر 21 تک 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہیں۔ ان آیتوں سے پہلے آپ کے سامنے توبہ کے کچھ احکام بتائے گئے تھے کہ توبہ کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی، یہ پوری تفصیل آپ نے سنی تھی۔ آج کے سبق اور آج کے درس میں بہت اہم پیغام ہے کلام پاک کا۔ کلام پاک کی پہلی آیت جو آج سورہ نساء کی جو پڑھی گئی ہے، اس میں کئی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اصل میں کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بڑی ظلم و زیادتی تھی۔ جس کا شوہر مر جایا کرتا تھا تو اس کے مال کے زبردستی مالک بن جایا کرتے تھے، یا تو اس وجہ سے مالک بنتے تھے کہ مالک بن جایا کرتے تھے اور ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے تھے، اور جو ان کو کچھ دے رکھا وہ بھی لے لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ایک عورت پہلی عورت تھی، اس کے پاس، اس کو طلاق دے کر کے دوسرے کی تمنا ہوئی، تو اور پہلی عورت کو بہت سارا مال دے رکھا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو پریشان کرتے تھے تاکہ وہ اس سے مال لے کر کے دوسری سے نکاح کر لوں۔ کلام پاک نے آج اس کے اوپر رد کیا ہے اور ان مردوں کو سمجھایا ہے، ایمان والے مردوں کو،
पहली आयत में ये फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए कलमा पढ़ने वालों मुसलमानों, ला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, जायज नहीं है, अन तरिसुन निसा करहा, कि तुम औरतों के जबरदस्ती मालिक बन जाओ। यानी इसमें 3 सूरतें हैं। जब किसी औरत का कोई शोहर मर जाया करता था तो उनके जो वारिस होते थे, यानी सौतेला बेटा या चचाजाद भाई या कोई भी खानदान का कोई भी आदमी क्या करते थे कि उस औरत से के माल के जबरदस्ती मालिक बन जाया करते, उसे कुछ नहीं दिया करते थे, यूं कहा करते तेरा कोई हिस्सा नहीं है इसमें। दूसरी सूरत ये कि उनसे जबरदस्ती उनको निकाह नहीं करने दिया करते थे, कहीं अपने पास रोक कर रखते थे ताकि ये मर जाए और ये सारा माल हमारा हो जाए। और तीसरी सूरत ये थी कि उनको जो है इतना परेशान करते थे, इतना तंग करते थे कि वो माल छोड़ करके सबका सब पूरा दे करके चली जाए। यानी शोहर अगर होता था, वो उसके मालिक वरसा होते थे, तो उसको इस तरीके से तंग किया करते थे। कलाम पाक ने कहा कि तुम जबरदस्ती किसी औरत पर मालिक नहीं बनोगे, जो मालिक है वो मालिक ही रहेगी। जैसा कि कलाम पाक की पहली जो आयत गुजरी है, वरासत के जेल में उसको कि अगर औलाद है तो माँ का 8वां हिस्सा है, औलाद नहीं तो 6ठा हिस्सा है, सारा कुछ बांट कर दे दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। तो अगर इस तरीके से तुम जुल्म करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। उसी को कलाम पाक ने फरमाया, आज भी बहुत सारी जगह ऐसी है कि अगर किसी औरत का शोहर मर जाता है तो ऐसी सूरत में उसको परेशान करते हैं, घर वाले टार्चर करते हैं, या तो वो छोड़कर चली जाए या फिर वो उसको वहीं रखते हैं और उसके माल को बिल्कुल नहीं देते हैं। इस तरीके से जुल्म और ज्यादती करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, अन तरिसुन निसाहा करहा, कि तुम जबरदस्ती किसी औरत के मालिक बन जाओ, यानी उसके माल के, उसके जान के जबरदस्ती किसी के मालिक नहीं हो। औरत का दिल नहीं चाह रहा है निकाह करने के लिए, जबरदस्ती उससे निकाह कर लिया करते थे। जबरदस्ती उसके दिल तमन्ना नहीं उसके कि नहीं मुझे करना नहीं है, जबरदस्ती कर लिया करते ताकि ये माल सारा हमारा हो जाए। इस तरीके से आगे फरमाया वला ताज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबादि मा आतीतुमुहुन्न, उनको रोक कर रखते थे। यानी अगर शोहर ने तलाक दे दी किसी औरत को, तलाक देने के बाद भी उसे कहीं निकाह नहीं करने देते थे और यूं कहा करते थे कि पहले हमें कुछ दे दो, 4 लाख रुपए, उसके बाद कहीं करिए। कलाम पाक ने फरमाया भाई तलाक दे दी तुमने, वो कहीं और जाकर निकाह करेगी, तुम क्यों उसे जबरदस्ती उसे निकाह से रोक रहे हो और माल के पीछे पड़े हुए हो। या करते थे ये कि उसको जो है इतना परेशान करते थे, शोहर इतना परेशान करते थे कि वो जो है अपना पूरा माल छोड़ करके और अपनी मेहर जो हुआ करती थी, वो मेहर भी सबका सब कह करके जी चलो आप मेहर रख लीजिए और मैं जा रही हूं। यानी खुला के ऊपर उसको मजबूर कर दिया करते थे। खुला कहते हैं कि औरत शोहर को या तो मेहर अपना माफ करके या मेहर दे करके या कुछ माल दे करके अपनी जान छुड़ा करके चली जाए, इसे कहते हैं खुला। और ये कब होता है जब शोहर परेशान करे औरत को, तो औरत के लिए इजाजत है कि वो फिर खुला ले सकती है। तो उसकी सूरत बताई वला ताज़ुलूहुन्ना, कि मत तुम्हें उन्हें रोक कर रखो, कैद मत करो उन औरतों को, लितज़हबू, इस गर्ज से, बिबादि मा आतीतुमुहुन्ना, जो तुमने उन्हें मेहर दे रखा है वो तुम वापस ले लो। वापस लेने की गर्ज से तुम उन्हें कैद मत करो, उन्हें रोक कर मत रखो। इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, अगली आयत के इस टुकड़े में बता रहे हैं कि मेहर वापस लेने की क्या सूरतें हैं। अगर बीवी के पास मेहर चला गया है तो उससे हम वापस लेना, तो उसकी क्या सूरत है। उसकी सूरत कलाम पाक ने फरमाई कि अगर औरत कोई नाशाइस्ता हरकत कर दे, मिसाल के तौर पर हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला तो ये कहते हैं कि इसके जेल में यह है कि औरत नाफरमानी करती है शोहर की, या बदतमीजी से बात करती है, गालियां देती है, बुरा भला कहती है, तो ऐसी सूरत में उस औरत को
उस औरत से मेहर वापस लेने की इजाजत है, शरीयत ने दी है कि इससे अपना मेहर वापस लेकर के इसे चलती करो यहां से, इसकी इजाजत है। ये किस सूरत में? जब कोई नाजायज ना शाइस्ता हरकत करे, ना फरमानी या फिर बदतमीजी बद अखलाकी से पेश आती है, ना बुरा भला कहती है, कोसती पीटती है, मारने धाड़ने को चढ़ती है। बहुत सारी औरतें जो अपने शोहरों को मार देती है। तो ऐसी सूरत में कलाम पाक में है कि इस सूरत में तुम उनसे वापस माल ले सकते हो और उनसे मेहर वापस ले सकते हो, इस सूरत में तो है, लेकिन उसके अलावा सूरत नहीं। या ऐसी हजरत हसन बसरी कहते हैं कि औरत कोई जिना कर ले किसी के साथ, तो फिर शौहर के लिए इजाजत है कि वो जमाना जाहिलियत में क्या, शुरू मजहबी इस्लाम में यह था कि अगर औरत कोई बेहयाई का काम कर दे तो उसको शौहर को इजाजत थी कि उसको कैद खाने में डाल दिया जाए, यानी कैद खाने घर में उसे बंद कर दिया जाए, या तो वो मर जाए या फिर वो उसके लिए अल्लाह ताला कोई सूरत निकाल दे। लेकिन वो हुक्म मनसूख हो चुका था। अब ये इजाजत दी है शरीयत ने कि उससे अपना मेहर वापस ले लो और उसे तलाक दे सकते हैं, आप उसे वापस भेज सकते हैं। जब वो जिना करती है, गलत चलती है, तो गलत के इस एतबार से कर सकते हो, वो तुम्हारी इख्तियार में है। अगर तुम ऐसे ही तरीके से इसे रखना चाहो तो तुम्हारा ये भी इख्तियार है। तो कलाम पाक ने फरमाया इल्ला अन आतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, मगर ये कि वो औरतें बेहयाई ना शाइस्ता कोई सरी हरकत कर दे, इस सूरत में आप उनसे माल ले सकते हैं। वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत अब कहना ये चाहते हैं, देखो औरतों के साथ अच्छे तरीके से रहना है, गुजरान उनके साथ अच्छे तरीके से रहना है। वो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, अपने खानदान को छोड़कर आई है तेरे वास्ते, और तू उसके साथ जुल्म ज्यादती करे, उसे परेशान करे, उसे सताए मारे, ये अच्छी बात नहीं हुआ करती। उनके साथ अच्छे तरीके से गुजरान करना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मियां बीवी का रिश्ता जो है ये बड़ा अहम रखा है। जब दुनिया स्टार्ट हुई और नस्ल इंसानी चली है, मियां बीवी से चली है, और आखिर में जब बचेंगे तो मियां बीवी बचेंगे। तो ऐसी सूरत में जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत हव्वा, मियां बीवी, माँ बाप है ही नहीं कोई। और जन्नत के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो उस वक्त भी माँ बाप आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके साथ आपकी बीवी रहेगी। तो मियां बीवी का जो रिश्ता है वो बड़ा अहम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कई मरतबा हदीस के अंदर ये फरमाया, अपनी औरतों के साथ अच्छे अखलाक के साथ रहो, अच्छे मिजाज के साथ रहो। तो कलाम पाक भी इसको कह रहा है, वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ गुजर बसर करो बिल मारूफ, अच्छे तरीके से, भले तरीके से, नरमी के साथ। आगे फरमाया फ़इन करी तुम उन्ना, बाज मरतबा ऐसा होता है कि मर्द को जो है औरत भाती नहीं है, निकाह तो हो जाता है लेकिन निकाह के बावजूद वो पसंद ही नहीं आती है, हालांकि वो सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन दिल को ही नहीं भाती है, ऐसी सूरत हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगली सूरत की आयत, इस आयत के टुकड़े में कहते हैं कि अगर तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हें भा नहीं रही है, तो फिर भी तुम उनके साथ सब्र के साथ रहो। तलाक देने की इजाजत नहीं है कि भाई इस पसंद नहीं आ रही तो, हालांकि बेचारी फर्मा बरदारी भी करती है, खिदमत करती है, खाना बनाती है, सब कुछ करती है, लेकिन बस दिल को अच्छी नहीं लगती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि बहुत सी चीज ऐसी होती है कि एक चीज तुम्हें पसंद ना आ रही हो और अल्लाह ने उसके अंदर बहुत सारी खैर रखी हो। जो औरत तुम्हें पसंद नहीं आ रही है, अल्लाह ने इसके अंदर जब तुम्हें निकाह में तुम्हारे आ गई है, तो तुम्हें पसंद नहीं आ रही, अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को पसंद तभी तो निकाह में आई है। अल्लाह को अगर ये जोड़ा ना बनाना होता तो अगर ये पसंद ना होता फिर कैसे निकाह में आ सकती थी आपके? तो ये निकाह में आना ये अल्लाह की मर्जी से ही होता है। तो अल्लाह की मर्जी मतलब ये है कि जब वो औरत आपके निकाह में आ गई है तो तुम्हें पसंद नहीं आ रही है, अल्लाह ने उसके अंदर बहुत सारी खैर रखी, हो सकता है इसके पेट से कोई नेक साले औलाद हो जो तेरी निजात का जरिया बन जाए। ये तेरी इतनी खिदमत करे, इतनी दूसरी भी नहीं कर सकती, ये से तेरे साथ इतनी मोहब्बत के साथ पेश आए, दूसरी आ भी नहीं सकती इतनी, तो इसलिए सब्र के साथ इसे रख लो। कहने का मतलब ये है। उसी को फरमाया फ़इन करी तुमुहुन्ना फ़ास, बस अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आ रही है, ना पसंद है, करी तुमुहुन्ना, तुम्हें कराहत गुजरती है, वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, फ़ासा अन तकरहू शैअन, मुमकिन है
کہ ایک چیز تمہیں ناپسند آ رہی ہو, یعنی وہ عورت تمہیں ناپسند آ رہی ہو, ممکن ہے, ہم مانتے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل کو اچھی نہیں لگ رہی ہے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرٍ كَثِيرًا, اور اللہ نے اس کے اندر بہت ساری خیر رکھی ہو, وہ تمہاری اچھی خدمت کرتی ہو, فرمانبرداری کرتی ہو, اور تمہارے نسل اس سے چل سکتی ہو, اچھی نیک اولاد آ سکتی ہے تمہارے ذریعے, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے, اس لیے تم اسے صبر کے ساتھ رکھ لو. آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, زمانہ جاہلیت میں ایک رسم اور تھی جو بہت کبھی تھی, بہت بری تھی. وہ یہ تھی کہ اگر ایک عورت کسی کے نکاح میں رہتی, اب مرد جو یہ چاہتا کہ نہیں اسے نہیں رکھنی, اب دوسری کو رکھنی ہے, تو کیا کرتے تھے, اور نکاح میں اور مہر میں اس کو بہت سارا مال دے رکھا ہے. عرب کے اندر تو بہت سارا مال چلتا تھا, یہاں تو ہماری طرف تو بہت ہلکا پھلکا مہر ہے, لیکن عرب کے اندر اب بھی بہت ساری مال چلتا ہے. تو مہر کے اندر آپ نے بہت سارا مال دے رکھا, اس کو باغ دے رکھے ہو, زمین دے رکھی ہو, مہر میں 2-4 لاکھ روپے دینار درہم دے رکھے ہو. اب تم سوچ رہے ہو کہ اس کی جگہ میں دوسری لاؤں گا, اسے تم طلاق دینا چاہتے ہو. تو کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ اس عورت کو جو پہلے نکاح میں ہے, اس کو اتنی پریشان کرتے تھے کہ وہ سارا مہر جتنا مال دے رکھا سارا واپس کر کے بھاگ جائے. ایک تو یہ صورت. دوسری صورت یہ کہ اس کے اوپر بہتان لگا دیا کرتے تھے, تو فلاں کے ساتھ لگی ہوئی, تو فلاں کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتی ہے, اسے اس طریقے سے پریشان کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یوں کہا کہ جب تم نے اسے نکاح میں رکھ لیا ہے اور تم نے اسے مال دے دیا ہے, تم طلاق دینا چاہتے ہو, تو اب طلاق تو دے سکتے ہو تم, لیکن تمہیں جو ہے اب وہ مال لینے کی اجازت نہیں ہے جو تم نے مہر میں دے رکھا ہے, کیونکہ وہ مہر میں جو دے رکھا ہے تم ایک دوسرے کو مل گئے ہو, تم نے وہ ہدیہ کر رکھا ہے, اور ہدیہ اور ہبہ کا مال واپس نہیں لے سکتے ہیں. ہبہ اور ہدیہ جو تم نے کسی کو دے دیا ہے اسے تم واپس نہیں لے سکتے ہیں. جب تم نے مہر ہدیے میں دے دیا, ہبہ کر دیا, اور تم نے اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا, عورت سے صحبت کر لی, اس کے ساتھ تم رہ لیے 1 مہینہ 2 مہینہ, تم نے خلوت سیاح کر لی, رخصتی ہو گئی تھی, تمہارے ساتھ رہتی تھی وہ, اب تمہارا کیسے منہ ہے تم اس سے مان لو؟ جب تم نے اس سے فائدہ لے لیا, مزہ لے لیا, تو اب اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے کہ تم اس سے کچھ مان لو. وہ 4 طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو منع کیا ہے کہ نہیں تم لے نہیں سکتے ہو. تم اس کو کلام پاک میں فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ, اگر تم چاہتے ہو بدلنا, زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, ایک عورت کی جگہ دوسری عورت, زوج کے معنی عورت, تم ایک عورت کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور تم نے اس میں سے ایک بیوی کو, یعنی جو پہلے نکاح میں ہے, اس کو بہت سارا مال, قنطار کہتے ہیں بہت سارا مال دے رکھا ہے تم نے, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, کچھ نہیں لے سکتے تم اس سے. اللہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں لے, چاہے تم نے کتنا بھی عرب خرب دے دیے ہوں پیسے, لیکن کچھ نہیں لے سکتے, کیونکہ تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے. ہاں اگر مہر دے دیا, آپ نے بہن متعین کر دیا, مہر دے دیا, اور رخصتی نہیں ہوئی ہے, تو اس صورت میں بھی آدھا لے سکتے ہو, آدھا اسی کے پاس رہے گا. اس صورت میں بھی اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے آدھا لے سکتے ہو. اور اگر مہر متعین نہیں کیا تھا, مہر متعین نہیں کیا تھا, تو پھر مسائل یہ کہتے ہیں, شریعت یہ کہتی ہے, اور تم نے اسے طلاق دے دی, تو اب یہ کہتے ہیں شریعت کہ اب اس کا مہر نہیں ہے, لیکن ایک جوڑا کپڑا دے دو اسے, ایک جوڑا اسے کپڑا دے دو کم از کم. اس کو کلام پاک نے فرمایا کہ تم ایک بیوی کی جگہ دوسری جگہ بیوی لانا چاہتے ہو, آتی تم احداہن قنطارا, اور تم نے ان میں سے ایک کو بہت سارا مال دے دیا, فلا تاخذوا منہ شیئا, تو تم اس سے کچھ نہیں لے سکتے. اتاخذونہ, کیا تم لیتے ہو اس کو بہتانن, بہتان لگا کر, یعنی کیا کرتے تھے کہ بہتان لگا دیا کرتے, تو فلاں کے ساتھ لگ رہی, تو یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے, تو میری بات نہیں مانتی ہے, یعنی اسے معاشرے میں اتنا بدنام کیا کرتے تھے, مال بھی لے لیا کرتے تھے, اسے لوگوں میں بدنام بھی کر دیا کرتے تھے. تو دونوں چیزیں, نہ تو اسے بدنام کرنا ہے جب تم طلاق دے رہے ہو, اسے چھوڑ رہے ہو, اور نہ ہی اس سے مال لینا ہے. وہ اسم مبینہ, نہ اسے پریشان کرنا ہے,
کہ तुम इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि बेचारी वो सारा कुछ छोड़कर भाग जाए। इतना भी परेशान नहीं करना। अगर छोड़ रहे हो तो उसे भले तरीके से मोहब्बत प्यार के साथ और भी कुछ दे करके भेजो। वकैफ़ ताख़ुज़ूनहु क़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बअज़, कुरान करीम में कहते हैं, अल्लाह ये कहते हैं, कैसे तुम ले रहे हो उस माल को हालांकि तुम दोनों आपस में मिल गए हैं, सोहबत कर ली तुमने आपस में, तुम मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम कर चुके हो। जब तुम मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम कर चुके हो और तुमने उसी चीज के लिए तुमने मेहर दिया है, तो अब कैसे तुम उसको ले सकते हो? यानी हमने किसी से कोई आरतन किराए पर कोई चीज ले ली और हमने माल दे दिया उसको, और हमने किराए में बरत भी ली, और फिर ये कह रहे हैं कि भाई ले अपने सामान ला हमारे पैसे। ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो औरत को जब आपने उससे फायदा हासिल कर लिया है, तो अब तुम मेहर कैसे ले रहे हो वापस? मेहर वापस नहीं ले सकते हैं आप। वक़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बअज़, दरा हालांकि तुम एक दूसरे से बेहिजाबाना बेपर्दे के मिल चुके हो। व अख़ज़ना मिनकुम, और वो औरतें तुमसे पक्का अहद ले चुकी है। पक्का अहद का मतलब ये कि तुमने निकाह के वक्त एक कहा था मैं पक्का उसको अपने निकाह में लेता हूं। कबूल जब करता है आदमी, तो कबूल का मतलब यह होता है कि ये 4 आदमियों में जो मजमा आम के सामने कबूल कर रहा है, तो यही तो अहद है, मैं उसे रखना चाहता हूं, मैं इसकी रोटी का, मैं उसके नानो नफके का, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं, इसी के लिए तो कबूल है। और तुमने ये मजमे के सामने कर रखा है, तो मजमे आम के सामने जो तुमने कबूल किया है, ये तो पक्का अहद है। इस अहद को तुम कैसे तोड़ना चाहते हो? और अगर तुमने मेहर देने का भी उस वक्त सब जिक्र होता है, निकाह के वक्त मेहर का भी जिक्र होता है, गवाहों का भी जिक्र है, सब कुछ जिक्र होता है। क्योंकि बहुत से मर्द क्या थे, औरत को ये कहा करते थे ये मेरे निकाह में है ही नहीं, इससे मेरा निकाह हुआ ही नहीं, खाली मेरा माल लेकर उड़ गई। हालांकि निकाह उसका हो गया था, लेकिन लोगों के सामने ये जाहिर करते थे कि इसका निकाह मेरे साथ हुआ ही नहीं था। तो अल्लाह यूं कह रहे हैं कि जब तुमने उससे अहद कर लिया, निकाह हो गया, और निकाह के बाद जब तुमने मेहर मुतय्यन कर दी और तुमने मेहर दे दिया, तो तुम कैसे ले सकते हो? नहीं ले सकते। कहने का मतलब यह है कि नहीं, इजाजत नहीं है, चाहे तुमने कितना भी माल दे दिया। उसी को कलाम पाक ने फरमाया व अखज़ना मिनकुम, और वो औरतें तुमसे मीसाकन, मीसाक मैंने होते हैं माना होते हैं अहद के, और गलीज के माना पक्का। पक्का का मतलब 4 आदमियों मजमे आम के सामने तुमने खुतबा पढ़ा गया, 2 गवाह बने और मेहर मुतय्यन हुआ, फिर तुमने इजाबो कबूल किया, तो सब कुछ होने के बाद ही तो तुम्हारे से निकाह हुआ था। कहीं ऐसे ही तुम्हारे हाथ पकड़ के थोड़ा ही दे देता। तुमने उसे इजाजत दी थी, कबूल कर रहा हूं, उसके बाद तुमने लिए, अब तुम उसे ऐसे जलील करके निकाल रहे हो। जब तुम इज्जत के साथ लाए थे, और अब इज्जत के साथ ही निकालो इसको। आजकल ये हो रहा है कि जिस औरत को तलाक दे रहे हो उसके ऊपर बुहतान लगा रहे हैं। अरे तुम्हें पसंद नहीं आ रही, तुम्हारे घर में पसंद नहीं आ रही, तो उसे इज्जत के साथ छोड़ो ना। बुहतान लगा करके उसके ऊपर परेशान करके, उसे टॉर्चर करके, और इसे इस तरीके से गलत सलत कह करके तुम उसे बदनाम करके माशरे में तुम निकाल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा मतलब तो ये कि कहीं भी ना निकाह कर सके, ये बेचारी इतनी बदनाम कर दे इसे। तो इसलिए जिस औरत को तलाक दो उसे इज्जत के साथ ही तलाक दो। 4 आदमी बिठा करके इसे कि भाई मेरा काम इसके साथ चलता नहीं है, मेरी इसके साथ निभाव नहीं होगा, अच्छी औरत है, अच्छी है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा इसके साथ ताल्लुक, मेरा निभाव नहीं होगा, बस ये कह दे। तो इसी को कलाम पाक में फरमाया इंशाअल्लाह अगली आयत में किन औरतों से निकाह जायज़ है, किन से नहीं है, इंशाअल्लाह वो अगली आयत में बताया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर वालों के साथ सही ताल्लुकात के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमाए, औरतों के साथ सही गुजरान की तौफीक नसीब फरमाए।